قدیم زمانے میں ایک وسیع و عریض سلطنت کے قلب میں واقع ایک پرانی بستی تھی جس کے گلی کوچے بازار کی رونق سے چمکتے اور جہاں دور دور سے لوگ آ کر تجارت کرتے تھے۔ اس بستی کے پرانے حصے میں ایک قدیم بازار تھا جو نہ صرف اپنے قیمتی کپڑوں اور رنگ برنگے مسالوں کے لیے مشہور تھا بلکہ سونے چاندی کے زیورات بنانے والے سناروں کی مہارت کی وجہ سے بھی شہر بھر میں اپنی مثال آپ تھا۔ انہی سناروں میں سے ایک سنار کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن ایک ایسا شخص تھا جس کے ہاتھوں کی کاریگری کو لوگ معجزہ کہتے تھے۔ اس کی بنائی ہوئی چوڑیاں، ہار اور انگوٹھیاں نہ صرف خوبصورت تھیں بلکہ ان میں ایک ایسی نزاکت اور جمال جھلکتا تھا جو دلوں کو موہ لیتا تھا۔ مگر عبد الرحمن کی اصل پہچان اس کے ہنر سے بڑھ کر اس کے ایمان اور تقوی کی تھی۔ اس کی دکان پر آنے والا ہر گاہک جانتا تھا کہ یہاں نہ تو تول میں کمی ہوگی نہ دھات میں ملاوٹ، کیونکہ عبد الرحمن ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو یاد رکھتا کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہی وہ صفت تھی جو عبد الرحمن کو عام سناروں سے ممتاز کرتی تھی۔ اس کی سادگی اور دیانت نے اسے لوگوں کے دلوں میں وہ مقام دیا تھا کہ بڑے بڑے امیر تاجر بھی اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ لیکن بستی کے ہر کونے میں نیک دل لوگ ہی نہ تھے، کہیں کہیں ایسے بھی تھے جو لالچ میں اندھے ہو چکے تھے۔ انہی میں سے دو بھائی تھے، حارث اور بشیر۔ یہ دونوں بظاہر عام تاجر تھے، کبھی کھجوریں بیچتے کبھی کپڑا، لیکن دل کے اندر دولت کی ایسی ہرس چھپی تھی کہ کوئی حرام طریقہ انہیں برا نہ لگتا تھا۔ بچپن ہی سے انہوں نے محنت سے زیادہ چالاکی کو کمال سمجھا تھا۔ وہ اکثر گاؤں کے کمزور اور غریب لوگوں کو اپنے چکر میں ڈال کر ان کی کمائی ہتھیا لیتے، مگر پھر بھی ان کا دل کبھی نہیں بھرتا تھا۔ ان کے دل میں ہر روز یہ خواہش بڑھتی کہ وہ ایک ہی وار میں اتنی دولت کمائیں کہ پھر زندگی بھر کچھ نہ کرنا پڑے۔ ایک روز حارث نے اپنے بھائی بشیر سے کہا، بشیر، یہ سونا چاندی کے کاروبار والے سنار روز کے روز کتنا کماتے ہوں گے؟ ہم ساری زندگی کھجوریں بیچتے رہیں تو بھی اتنا نہ کما سکیں گے۔ اگر ہم کوئی ایسی ترکیب نکالیں کہ ایک ہی دن میں ان کا سونا ہمارے ہاتھ آ جائے تو پھر زندگی بھر عیش کریں گے۔ بشیر کی آنکھوں میں بھی وہی چمک آ گئی جو ہمیشہ حرام مال کی خوشبو محسوس کر کے ان میں جاگتی تھی۔ وہ بولا، ہاں بھائی، یہ بات تو تم نے دل کی کہی، مگر بازار کا ہر سنار بڑا چالاک ہے، کوئی نہ کوئی ترکیب نکالنی ہوگی۔ دونوں نے کئی دن تک بازار میں گھوم پھر کر سب سناروں کو دیکھا، ان کے کام کاج کا اندازہ لگایا، کس کی دکان پر کس وقت زیادہ رش ہوتا ہے، کس کے پاس قیمتی زیور آتا ہے۔ آخر کار ان کی نظر عبد الرحمن کی دکان پر ٹھہر گئی۔ عبد الرحمن کی دکان ہمیشہ گاہکوں سے بھری رہتی تھی اور اس کی ہاں قیمتی زیورات بنتے۔ حارث نے سرگوشی میں بشیر سے کہا، یہی ہے وہ شخص جس کے پاس مال بھی ہے اور اعتماد بھی۔ اگر ہم اس کو کسی ترکیب سے دھوکہ دے دیں تو زندگی بھر سونا ہاتھ آئے گا۔ بشیر نے آنکھ دبائی، مگر یاد رکھ، یہ شخص بڑا ایماندار ہے، اس پر سیدھا جھوٹ شاید چل نہ پائے، کوئی باریک چال چلنی پڑے گی۔ دونوں نے دنوں تک ترکیبیں سوچی۔ کبھی یہ خیال آیا کہ نقلی سونا لا کر اصلی کے بدلے بدل دیں، کبھی سوچا کہ قیمتی زیور دکھانے کے بہانے لے جائیں، لیکن ہر بار انہیں لگتا کہ عبد الرحمن کی تیز نظر فوراً پہچان لے گی۔ ان کے دل میں حسد اور لالچ مزید بھڑکنے لگا۔ ادھر عبد الرحمن اپنے کام میں مشغول تھا۔ وہ فجر کے بعد دکان کھولتا، بسم اللہ کہہ کے کام شروع کرتا اور ہر گاہک سے پہلے سلام کرتا۔ وہ اکثر اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتا، بیٹو، سچائی سب سے بڑا سرمایہ ہے، دھوکہ دینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے کی روشنی اور گفتگو کا انداز سننے والوں کو بھی نیک عمل کی ترغیب دیتا۔ بازار کے بزرگ اسے دعائیں دیتے اور لوگ کہتے کہ عبد الرحمن کی دکان پر برکت ہے۔ ایک دن حارث اور بشیر نے ایک نئی چال سوچی۔ بشیر نے کہا، ہم ایک بڑی رقم کا آرڈر دیں گے، کہیں گے ہمیں ایک خاص موقع کے لیے قیمتی زیورات چاہیے، پھر ادائیگی کے نام پر کوئی ترکیب کریں گے اور مال لے کر غائب ہو جائیں گے۔ حارث نے خوش ہو کے کہا، ہاں یہی ٹھیک ہے، مگر اتنی بڑی رقم کے لیے ہمیں کوئی ایسا بہانہ بنانا ہوگا کہ وہ شک نہ کرے۔ بشیر نے سوچا، ہم کہیں گے کہ ہماری بہن کی شادی ہے اور ہم شہر کے بڑے خاندان سے ہیں۔ دونوں نے شاندار کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اگلے دن عبد الرحمن کی دکان پر پہنچ گئے۔ عبد الرحمن نے حسب عادت مسکرا کے ان کا استقبال کیا۔ السلام علیکم بھائیو، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بشیر نے بڑے ادب سے کہا، وعلیکم السلام،
हम आपकी महारत के बहुत कायल हैं। हमारी बहन की शादी है और हम चाहते हैं कि इसके लिए खास जेवरात बनवाएं जो पूरे शहर में मुनफरिद हों। अब्दुर्रहमान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए किस तरह के जेवरात दरकार हैं? हारिस ने नरमी से कहा, हमें सोने का एक मुकम्मल सेट चाहिए जिसमें हार, बालियां, कंगन सब हों, और हम चाहते हैं कि ये काम आप जैसे ईमानदार और माहिर के हाथों से हो। अब्दुर्रहमान ने कहा, इंशाअल्लाह मैं 3 हफ्ते में ऐसा सेट तैयार कर दूंगा कि आपकी बहन की शादी यादगार बन जाएगी। बशीर ने कहा, पेश की कुछ देना होगा? अब्दुर्रहमान मुस्कुराया, भाई, आपकी बातों से मालूम होता है कि आप नेक नियत हैं, मगर दस्तूर यही है कि आधी रकम पेशगी ली जाए। हारिस ने कहा, बेशक, हम कल आधी रकम लेकर आते हैं। ये सुनकर दोनों भाई दुकान से बाहर निकले और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। बशीर ने कहा, पहला कदम कामयाब, अब बस वो दिन आए जब हम अपनी चाल चले। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस बस्ती का ये नेक दिल सुनार सिर्फ हाथों का माहिर नहीं बल्कि दिल का भी साहिब बसीरत था। वो लोगों की आंखों की चमक और लहजे की बारीकी से उनके इरादे भांप लेता था। जब ये दोनों भाई दुकान से निकले तो अब्दुर्रहमान के दिल में एक लम्हे को एक अजीब सी खलिश महसूस हुई। उसने अपने शागिर्द उमर से कहा, बेटे, इन दोनों की बातें तो मीठी थीं, मगर इनकी आंखों में एक अजब लालच की झलक देखी। हमें एहतियात करनी चाहिए। उमर ने कहा, उस्ताद जी, आपकी फरासत को सलाम है। आप हमेशा सच पहचान लेते हैं। अगले दिन हारिस और बशीर वाकई रकम लेकर आए। उन्होंने आधी रकम दी और रसीद ली। अब्दुर्रहमान ने निहायत शाइस्तगी से कहा, आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह आपका काम वक्त पर मुकम्मल होगा। उसके बाद वो अपने काम में लग गया, मगर उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, अगर इनका इरादा कुछ और है तो मुझे अपनी हिकमत से बचा लेना। अब्दुर्रहमान अक्सर रात के वक्त तहज्जुद में अल्लाह के सामने दिल की बात रखता और अपने कारोबार की बरकत के लिए दुआ करता। उसी रात उसने ख्वाब में देखा कि एक नदी के किनारे 3 कीमती पत्थर पड़े हैं। 2 पत्थर ऊपर से चमकदार मगर अंदर से खोखले, और तीसरा सादा सा मगर अंदर से खालिस। इस ख्वाब से जाकर उसके दिल को इत्मीनान ना हुआ। वो सोचने लगा कि शायद ये कोई इशारा है कि 2 चमकदार चीजों में खोट है और असल खालिस वो है जो सादा है। अगली सुबह जब बाजार की घंटी बजी और दुकानें खुलने लगी तो अब्दुर्रहमान ने हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी दुकान का दरवाजा खोला। जो सपना उसने रात में देखा था वो बार बार उसके मन में लौट आ रहा था। 2 चमकदार लेकिन खोखले पत्थरों और एक सादे लेकिन शुद्ध पत्थर का दृश्य, जैसे दिल में कोई छिपा हुआ इशारा दे रहा हो। अब्दुर्रहमान ने वुजू किया और 2 रकात नफल शुक्राना पढ़ के अल्लाह से दुआ की, हे रब, अगर ये सपना किसी खतरे का संकेत है तो मुझे अपनी हिकमत से सुरक्षित रख और मेरे दिल को सच्चाई दिखा। दिल में एक अजीब सा सुकून भी था कि जो भी होगा अल्लाह की रजा के अनुसार होगा। दुकान खुलने के कुछ ही देर बाद उसके शागिर्द उमर ने कहा, उस्ताद जी, वो दोनों भाई फिर आ रहे हैं। अब्दुर्रहमान ने सर उठाकर देखा तो वास्तव में हारिस और बशीर अपनी ही शान में मुस्कुराते हुए आ रहे थे, जैसे कोई बड़ा कारनामा करने वाले हों। दोनों ने दुकान में प्रवेश करते ही बड़े तड़क भड़क से सलाम किया और खुशखबरी सुनाई कि शादी के इंतजाम जोर शोर से जारी हैं और वे चाहते हैं कि जेवर जल्दी पूरे कर लिए जाएं ताकि बाकी तैयारियां भी पूरी हो सकें। अब्दुर्रहमान ने नर्म स्वर में कहा, इंशाअल्लाह मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम पूरा करूंगा, लेकिन याद रखिए, केवल दिल की सच्चाई और नीयत की पवित्रता से ही बरकत आती है। हारिस ने नकली मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, अल्लाह नियतों को देखता है। मगर अब्दुर्रहमान ने उनके लहजे में एक ऐसा खोखलापन महसूस किया जो उसके सपने की याद दिला रहा था। दिन बीतते गए और अब्दुर्रहमान ने पूरी मेहनत से जेवर बनाने शुरू किए। वो हर कड़ी को न केवल अपनी कला से संवारता बल्कि रोज काम की शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ता और शागिर्दों को भी याद दिलाता कि ये हुनर सिर्फ रोजी का जरिया नहीं बल्कि इबादत का हिस्सा है, अगर नीयत साफ हो। बाजार के अन्य दुकानदार भी आकर उसके बनाए जेवर देखकर हैरान होते और दुआएं देते। इस बीच हारिस और बशीर कई बार दुकान पर आते और कभी कभी विभिन्न बहानों से जेवर की झलक देखने की कोशिश करते। कभी कहते कि बस एक बार हार दिखा दो ताकि अपनी बहन को रंग के बारे में बता सकें, कभी कहते कि कंगन का डिजाइन देखना चाहते हैं। अब्दुर्रहमान ने हर बार नर्म स्वर में कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, जब सब तैयार हो जाएगा तो आप दोनों को एक साथ दिखाऊंगा।
उसका ये निर्णय दोनों भाइयों के लिए थोड़ा परेशानी भरा था, क्योंकि उनकी चाल में ये बात शामिल थी कि जेवर देखने के बहाने किसी दिन मौका पाकर कुछ कीमती टुकड़े साथ ले जाएं। लेकिन अब्दुल रहमान की सतर्कता ने उनकी ये पहली कोशिश नाकाम बना दी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और बाजार बंद होने को था, हारिस ने बशीर से कहा, यह सुनार तो बड़ा सतर्क है, हमें अपनी चाल बदलनी होगी, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बशीर ने कहा, हाँ, लगता है वो उतना सीधा नहीं जितना हमने सोचा था, मगर घबराने की जरूरत नहीं। हमें कोई ऐसा दिन ढूंढना होगा जब बाजार में भीड़ हो और हम हंगामे में अपना काम कर सकें। दोनों ने तय किया कि शादी के दिन के करीब वहीं हंगामा करेंगे और भुगतान का बहाना बनाकर माल ले जाएंगे। दिनों की तेजी के साथ शादी की तारीख करीब आने का बहाना उनकी योजना में और रंग भरने लगा। शहर भर में उनकी बहन की शादी की खबरें फैल गईं। हालांकि उनकी कोई बहन थी ही नहीं। लोग बधाई देते और वे झूठ मूठ धन्यवाद अदा करते। अब्दुल रहमान के कानों तक भी ये खबरें पहुंची, मगर उसके दिल का इस्तिराब कम नहीं हुआ। एक रात उसने तहज्जुद में अल्लाह के सामने दिल खोलकर कहा, हे रब, अगर ये लोग धोखा देना चाहते हैं तो मुझे अपनी खुशनसीबी से बचा और उन्हें हिदायत दे कि वो इस गुनाह के इरादे से पलट आएं। कुछ दिन बाद हारिस और बशीर फिर दुकान पर आए और कहा, अब्दुल रहमान भाई, शादी के दिन करीब हैं, हमें अपने जेवर लेने हैं। हम आज ही बाकी रकम भी दे देंगे ताकि आप कल तक सब कुछ पूरा कर दें। ये कहते हुए हारिस ने एक बड़ी थैली में चमकती हुई अशरफियां अब्दुल रहमान के सामने रख दी। अब्दुल रहमान ने अशरफियों को देखते हुए दिल ही दिल में कहा, हे अल्लाह, इनकी आंखों की चमक मेरे सपने के उन चमकदार पत्थरों जैसी है, मगर क्या ये भी खोखले हैं? उसने शागिर्द उमर को इशारा किया कि अशरफियां गिन ले। उमर ने गिनकर कहा कि संख्या पूरी है, मगर अब्दुल रहमान का मन फिर भी संतुष्ट नहीं था। उसने बड़े अदब से कहा, भाइयों, आज तो बाजार भीड़ भाड़ से भरा है। कल सुबह जब सब शांत होगा आप आकर जेवर ले जाएं, मैं तब तक आपकी रकम सुरक्षित रखूंगा। हारिस ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए बशीर की तरफ देखा, मगर फिर मुस्कुरा कर बोला, जैसा आप उचित समझे। वे दोनों चले गए, मगर उनके दिल में इस्तिराब की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनकी चाल यही थी कि उसी दिन हंगामा कर जेवर ले जाएं और बाकी रकम के नकली सिक्के छोड़ जाएं। अब्दुल रहमान ने दुकान बंद करते समय फिर वही सपना याद किया। रात के आखिरी पहर जब वो तहज्जुद के लिए उठा, दिल में अजीब सुकून था, जैसे अल्लाह ने उसके दिल पर कोई रोशनी डाल दी हो। उसने सोचा कि कल सुबह जब ये लोग आएंगे तो मैं एक ऐसा इम्तिहान लूंगा जिससे उनके दिल का हाल खुल जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें बस्ती पर पड़ी और पंछियों की चहचहाट ने हवा को जगाया, अब्दुल रहमान ने अपनी आदत के अनुसार दुकान खोली और बिस्मिल्लाह पढ़ा। कुछ ही देर में हारिस और बशीर आ गए। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी, जिसे वे मुस्कान के पर्दे में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अब्दुल रहमान ने निश्चिंत स्वर में कहा, भाइयों, जेवर तैयार हैं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं। कल जब आपने ये अशरफियां दी थी तो कहा था कि ये आपकी बहन की शादी के लिए है। क्या आप अपनी बहन का नाम और पिता का नाम बता सकते हैं ताकि मैं अपने रजिस्टर में लिख लूं? ये सुनते ही हारिस और बशीर एक पल के लिए गड़बड़ा गए। बशीर ने जल्दी से कहा, वो उसका नाम फातिमा है। अब्दुल रहमान ने नरमी से पूछा, कौन सी फातिमा? मैं तो इस गांव की हर फैमिली को जानता हूं। आपके पिता का नाम? हारिस के माथे पर पसीना आ गया। वो हकलाने लगा, हमारे पिता वो शहर के दूसरे हिस्से में रहते हैं। अब्दुल रहमान ने गहरी नजर से उनकी आंखों में झांका और मुस्कुरा कर कहा, भाइयों, सच्चाई दिल को सुकून देती है, मगर झूठ दिल को बेचैन करता है। मैं आपके दिल की धड़कन सुन सकता हूं जो आपके शब्दों के खिलाफ गवाही दे रही है। अगर आपकी नीयत साफ है तो सच कहो, वरना याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। यह सुनकर दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। बशीर ने एक पल के लिए अपने भाई की ओर देखा और फिर सिर झुका लिया। उसके होंठ थरथराए। हम दरअसल, मगर हारिस ने उसका हाथ दबाकर रोका। अब्दुल रहमान ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप जेवर एक ओर रख दिए। इस समय बाजार के कुछ और दुकानदार भी आ गए और दृश्य को देखने लगे। दोनों भाइयों के भीतर अजीब सा डर जागा कि उनका राज खुल सकता है। हारिस ने जल्दी से कहा, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, और वे दोनों जल्दी से दुकान से बाहर निकल गए। अब्दुल रहमान ने पीछे मुड़कर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, हे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे दिल को सच पहचानने की खुशनसीबी दी है। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। बाजार की हलचल की जगह ठंडी हवा की सरसराहट और बस्ती के कुत्तों की भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मगर हारिस और बशीर की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वे दोनों अपने कच्चे मकान के कोने में बैठे एक दूसरे को खाली निगाहों से देख रहे थे। आखिरकार बशीर ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भाई, आज जो हुआ उसके बाद मेरा दिल बहुत भारी है। अब्दुल रहमान के शब्द बार बार कानों में गूंज रहे हैं कि अल्लाह सब देख रहा है। हारिस ने एक पल के लिए नजरें झुकाईं, मगर उसकी आंखों में अब भी जिद की चमक थी।
हमें अभी भी मौका है कि सुबह जल्दी जाकर जेवर ले आएं और बाकी रकम के नकली सिक्के छोड़ दें। बस थोड़ी हिम्मत चाहिए। बशीर ने आह भरी। लेकिन भाई, उसकी आंखों में जो नूर था, उसकी भाषा की वो नरमी और पक्का विश्वास, मुझे लगता है जैसे हम केवल उसे नहीं बल्कि अपने रब को धोखा देने निकल पड़े थे। हारिस चुप रहा, लेकिन उसके दिल में भी वही बेचैनी हलचल करने लगी। दोनों देर तक बैठे रहे, कभी एक दूसरे को देखते, कभी जमीन को, मगर दिल का बोझ हल्का नहीं हुआ। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही बस्ती में अजान की आवाज गूंजी। बशीर ने दिल ही दिल में कहा, काश हम इस आवाज पर हां कह सकते और अल्लाह से माफी मांग सकते। हारिस ने कुछ देर बाद सिर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी। उसने धीरे से कहा, बशीर, शायद हमने बहुत बड़ी गलती की है। ये माल हमें कुछ दिनों की खुशी देगा, लेकिन दिल का सुकून छीन लेगा। बशीर ने सिर हिलाया। आओ, फजर की नमाज के बाद अब्दुल रहमान के पास चले और सब सच सच बता दें। हारिस ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ भाई, अब यही बेहतर है। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान भी फजर की नमाज के बाद अपनी दुकान के कोने में बैठा तस्बीह के दाने गिन रहा था। उसके दिल में अल्लाह की प्रशंसा और शुक्र का एक अजीब सा सुकून था। वो बार बार यही दुआ कर रहा था, हे अल्लाह, इन दो भाइयों के दिलों को हिदायत दे और उन्हें तौबा करने की ताकत दे। शागिर्द उमर ने आकर सलाम किया और कहा, उस्ताद जी, आप बहुत मजबूती से खड़े रहे कल। आपका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे आपके दिल को पहले ही सब कुछ पता था। अब्दुल रहमान मुस्कुराए और बोले, बेटा, इंसान कुछ नहीं जानता, सब कुछ अल्लाह ही दिखाता है। जब दिल को अल्लाह से जोड़ लो तो वही दिल को पहचानने की आंख देता है। इसी बीच हारिस और बशीर धीरे धीरे दुकान के पास पहुंचे। उनके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उनके गुनाहों का बोझ भी चल रहा हो। दुकान में प्रवेश करते ही दोनों ने धीरे से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई। अब्दुल रहमान ने नरमी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाइयों? बशीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम आपसे माफी मांगने आए। हारिस ने सिर झुकाते हुए कहा, हमने आपका भरोसा तोड़ने का प्लान बनाया था। हमने झूठ बोला कि हमारी बहन की शादी है। असल में हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, हम केवल आपको धोखा देकर जेवर लेना चाहते थे। लेकिन कल आपके शब्दों और आपकी नज़र ने हमें अंदर से हिला दिया। रात हमने कोई नींद नहीं ली। हमें लगा जैसे अल्लाह हमें देख रहा है और हमारे गुनाहों का हिसाब लेगा। हमें माफ कर दीजिए। अब्दुल रहमान ने दोनों की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, भाइयों, मेरा दिल आप पर गुस्से से नहीं भरा है, बल्कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ये शैतान का धोखा था जो आपके दिल में आया, मगर अल्लाह ने आपको समय पर जगा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर इंसान से गलती होती है और सबसे अच्छे वो हैं जो तौबा कर लेते हैं। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। हम सच में तौबा करते हैं। हमें माफ करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें सही रास्ते पर बनाए रखे। अब्दुल रहमान ने उनके कंधों पर हाथ रखा और कहा, आओ, मेरे साथ 2 रकात नफल पढ़ो और अल्लाह से दिल से माफी मांगो। जब इंसान दिल की गहराई से तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे वे कभी हुए ही ना हों। दोनों भाइयों ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया और अब्दुल रहमान के साथ नज़दीकी मस्जिद गए। वहां उन्होंने दिल की सच्चाई से अल्लाह के सामने सजदा किया, आंखों से बहते आंसुओं के साथ इस्तग़फ़ार किया और वादा किया कि अब कभी धोखा, झूठ या हराम की ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे। नमाज के बाद अब्दुल रहमान ने नरमी से कहा, भाइयों, सोने और चांदी की मोहब्बत इंसान के दिल को अंधा कर देती है, लेकिन याद रखो कि असली दौलत अल्लाह की रज़ा और दिल का सुकून है। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे तो अल्लाह उसमें इतनी बरकत डाल देगा कि तुम्हारा दिल कभी खाली नहीं होगा। हारिस ने गहरी सांस ली और कहा, आपने हमें न केवल माफ किया बल्कि हमें नई जिंदगी दी है। हम वादा करते हैं कि अब मेहनत और ईमानदारी से रोजी कमाएंगे और जो भी हमने अब तक हराम तरीके से कमाया है उसे नेक रास्ते पर खर्च करेंगे। बशीर ने भी सिर झुकाकर यही वादा किया। कुछ दिन बाद लोगों ने बाजार में ये नज़ारा देखा कि हारिस और बशीर अपने कारोबार में एक नया अंदाज लेकर आए थे।
अब वो हर सौदा अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते, झूठ और धोखाधड़ी से बचते और गरीबों की मदद करते। उनके दिल का बोझ हल्का हो गया और चेहरों पर एक ऐसी रोशनी आ गई जो केवल सच्चाई और ईमान से मिलती है। लोग हैरान थे कि ये वही दो भाई हैं जो पहले लालच में डूबे रहते थे। जब किसी ने उनसे इस बदलाव का कारण पूछा तो वो मुस्कुराकर बस इतना कहते कि ये सब अल्लाह की कृपा और अब्दुल रहमान भाई की दुआ का नतीजा है। अब्दुल रहमान की दुकान पर भी अब एक अलग तरह की बरकत थी। लोग न केवल उसके जेवर की तारीफ करते बल्कि उसके चरित्र की मिसाल देते। शागिर्द उमर अक्सर कहता कि उस्ताद जी, आपने न केवल दो दिलों को संवार दिया बल्कि हम सभी को सिखाया कि ईमान और समझदारी के साथ इंसान दूसरों के लिए रोशनी का जरिया बन सकता है। अब्दुल रहमान मुस्कुराकर कहते, बेटा, ये सब अल्लाह की तौफीक है, हमें बस अपनी नीयतें साफ रखनी है और बाकी वो खुद संवार देता है। इस तरह बस्ती की गलियों में ये कहानी मशहूर हो गई कि कैसे दो लालची भाई अल्लाह की निशानियों और एक नेक दिल सुनार की समझदारी से बचाए गए। लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते और कहते, देखो, सोने और चांदी की चाह इंसान को भटका सकती है, मगर जो अल्लाह से डरता और सच्चाई पर कायम रहता है वो न केवल खुद सुरक्षित रहता है बल्कि दूसरों को भी सही राह दिखाता है।